السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کی اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ آج کا جو کوسچن ہے وہ ہمارا ہے جو پروگرامنگ لینگویج سے ریلیٹڈ آج دیکھنے والا ہے کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتے ہیں اور کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں۔ لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹے سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن ہمارے پاس ہے جی واٹ از کمپیوٹر پروگرام۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے اینڈ کمپیوٹر لینگویج کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی ایکسپلین دا مین پروگرامنگ لینگویجز آف دا کمپیوٹر۔ ہم نے مین پروگرامنگ جو لینگویجز ہیں کمپیوٹر کی وہ بھی دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے۔ The set of instructions given to the computer to solve a specific problem is called computer program۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کمپیوٹر کی کسی بھی پرابلم کو سالو کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا پروگرام بناتے ہیں، اور پروگرام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر میں ایک پروگرام بناتے ہیں۔ وہ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہ والی پرابلم جو ہے وہ اس کو سالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی اسپیسیفک پرابلم کے لیے ہم جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ کمپیوٹر can solve problems with the help of computer program۔ اچھا جی، کمپیوٹر جو ہے وہ ان پرابلمس کو کس طرح سالو کرتا ہے with the help of computer program۔ کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے جو ہے کمپیوٹر ان پرابلمس کو سالو کرتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کمپیوٹر تو جو ہے وہ ڈم مشین ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم جب تک اسے انسٹرکشنز نہیں دیتے تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور ہمیں پتہ ہے کہ سیٹ آف انسٹرکشنز جو ہوتے ہیں وہ پروگرامز ہوتے ہیں، پروگرام سے جو ہیں وہ کمپیوٹر میں رن ہوتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ کمپیوٹر پروگرامز آر ریٹن ان پروگرامنگ لینگویجز۔ ہمارے جو کمپیوٹر کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ کس میں لکھے جاتے ہیں؟ پروگرامنگ لینگویج میں جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر پروگرامز لکھے جاتے ہیں۔ A person who develops پروگرام از کالڈ پروگرامر۔ اچھا جی، وہ جو پروگرام لکھنے والا پرسن ہوتا ہے نا اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ پروگرامر ہے۔ جو کمپیوٹر کے پروگرامز لکھتا ہے پروگرامنگ لینگویجز کے تھرو، تو وہ اس لکھنے والے پرسن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ڈیولپ کرتا ہے پروگرام کو اسے ہم کہتے ہیں یہ پروگرامر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی پروگرامنگ لینگویجز۔ پروگرامنگ لینگویج از یوز ٹو کمیونیکیٹ ود کمپیوٹر۔ اچھا، پروگرامنگ لینگویجز کس لیے یوز کی جاتی ہیں؟ ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کے ساتھ بات چیت کر سکیں، اس کے لیے ہم کون سی لینگویج یوز کرتے ہیں؟ پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آل کمپیوٹر پروگرامز آر ریٹن ان پروگرامنگ لینگویجز۔ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں نا کمپیوٹر کے پروگرامز، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پروگرامنگ لینگویج کے تھرو ہی لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یوز کرتے ہیں، پروگرامنگ لینگویج کو یوز کرتے ہوئے سارے کے سارے پروگرام کمپیوٹر کے جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ ایوری پروگرامنگ لینگویج ہیز اے سیٹ آف الفابیٹس اینڈ رول۔ اچھا، اب کیا ہے ہمارے پاس جتنی بھی پروگرامنگ لینگویج ہیں ان کے اپنے سیٹ آف الفابیٹس ہیں، اور کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ کچھ رولز پر وہ مشتمل ہوتی ہے۔ جو ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ سیٹ آف الفابیٹس پر اور کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ کچھ رولز جو ہیں وہ ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ الفابیٹس جو ہوتے ہیں ہمارے A B C، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو الفابیٹس ہیں۔ The instructions of computer program are written by using the alphabets and rules defined by the programming language۔ ٹھیک ہے، پروگرامنگ جو ہماری انسٹرکشنز ہوتی ہیں کمپیوٹر پروگرام کو لکھنے کی، وہ کس کو یوز کر کے لکھی جاتی ہیں؟ الفابیٹس کو، اور کچھ سیٹ آف رولز جو ہیں وہ ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو لکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے اپنے جو ہے کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں اور کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم جو ہے وہ کمپیوٹر کے پروگرام کے لیے کچھ انسٹرکشنز لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
कंप्यूटर का प्रोग्राम हम बनाते हैं, कंप्यूटर का प्रोग्राम हमें पता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं ना, वो कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ रूल्स जो हैं वो डिफाइन करके हम अपनी जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम लिखते हैं। उसके बाद क्या है जी, टाइप्स कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स हैं वो कितनी हैं? देयर आर 3 टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। 3 टाइप्स जो हैं या कैटेगरीज बोल सकते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हैं। पहली क्या है जी हमारे पास है, पहली है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी है मिडिल लेवल लैंग्वेज और तीसरी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, ये हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होती है। मतलब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ये कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होती है। हमें पता है कंप्यूटर जो है वो हमारा किस फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में, ठीक है। तो जो ये लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, ये हमारी 0-1 की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि ये कंप्यूटर से करीब होती है, नियर टू कंप्यूटर होती है और फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। ये देखिए, अब ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो क्या 0-1 पर कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल होती है? नहीं जी, हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। सो हमारी लो लेवल लैंग्वेज जो है, ये बात याद रखनी है कि ये नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होती है, ठीक है। ये कंप्यूटर के करीब होती है ये लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज के से दूर होती है। मतलब ह्यूमन जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जबकि मशीन जो है इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेती है लो लेवल लैंग्वेज को, लेकिन इंसान जो है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर एग्जांपल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। हमारे पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों टाइप्स जो हैं ये किसकी हैं? लो लेवल लैंग्वेज की। अब देख लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ऑल्दो कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड मैनी डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अच्छा जी, कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। There is only one language understood by the computer without using a translation program, ठीक है। अब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा बहुत सारी जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मशीन लैंग्वेज का क्या बोल रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज ओनली वन लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। मतलब उसको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन फॉर एग्जांपल, अब हम एक बंदा जो है वो फ़ारसी बोलता है और एक उर्दू बोलता है। अब फ़ारसी वाले ने उर्दू वाले पर्सन से जो है वो बात करनी है, तो वो उर्दू वाले को तो फ़ारसी आती नहीं है और फ़ारसी वाले को भी जो है वो उर्दू नहीं आती। अब क्या होगा कि हम एक पर्सन जो है वो ऐसा चूज़ करेंगे, ये जो है ये उर्दू बोलता है और ये पर्सन जो है वो क्या बोलता है? फ़ारसी बोलता है, ठीक है। अब क्या है कि हम एक ऐसा पर्सन सेंटर में लेंगे जिसको उर्दू भी आती होगी और जिसको फ़ारसी भी आती होगी। अब ये क्या करेगा, ये वाला पर्सन जो है वो क्या करेगा, इसकी बात सुनेगा, उर्दू में बात सुनेगा और उसको फ़ारसी में कन्वर्ट करके, और जो फ़ारसी वाला बंदा है जिसको फ़ारसी समझ आती है उसको उसकी ज़ुबान में बात को समझा देगा, ठीक है। इसी तरह ये जो ट्रांसलेटर है ये काम करता है। ये क्या करता है, ये हमारी जो लैंग्वेज होती है ह्यूमन के करीब हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं उनको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। ये कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देन वो जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो क्या होता है? रन होता है कंप्यूटर पर। ये कितनी टाइप के ट्रांसलेटर हैं ये भी आगे हम फर्दर देखेंगे। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज और द मशीन कोड। इसे हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं और मशीन कोड भी कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके क्या है जी करेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जी, इसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। जब हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स देखी थी तो हमने देखा था कि उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, यही मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती थी। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। ये किस फॉर्म में लिखी जाती है? ये बाइनरी नंबर मतलब 0-1 की फॉर्म में जो है वो लिखी जाती है। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1।
प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज रन वेरी फास्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं जो भी प्रोग्राम है हमारे, प्रोग्राम क्या है, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब क्या है जी, कह रहे हैं जो भी हमारे पास प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है तो कंप्यूटर जो है वो उसे फास्टली जो है वो रन करवा देता है, ठीक है। इन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स डेवलप इन वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है इनको डेवलप करना, मतलब इनकी जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, इंसानों के लिए। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास आ जाता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? अ लैंग्वेज विच इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज इन ह्यूमन रीडेबिलिटी इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। अच्छा जी, ये क्या होती है कि हमारे पास ये एक स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप जो है होती है हायर होती है इन ह्यूमन रीडेबिलिटी, मतलब इसको जो है ह्यूमन इंसान जो है वो इजीली रीड कर सकता है। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज थी उसे जो है ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को जो है वो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रीडेबिलिटी है, मतलब in an assembly language binary numbers are replaced by human readable symbols called mnemonics। अच्छा जी, अब क्या है इसमें, क्या होता है इस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, हमारे पास हमने देखा मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में जो होती है, मतलब वो बाइनरी नंबर्स में लिखी जाती है। तो इसमें क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज जो एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से, तो इसमें क्या हुआ कि हमने मशीन बाइनरी नंबर्स को हटा के हमने ह्यूमन रीडेबल सिंबल्स में जो है वो इसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब जैसे अब अगर हमने कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास वर्ड यूज होगा उस इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए वो क्या होगा, सब होगा। लेकिन अगर यही कोड हम क्या करते मशीन लैंग्वेज में लिख रहे होते तो हमें सब की जगह इसका कोई ना कोई जो है बाइनरी कोड लिखना पड़ना था, ठीक है। वो उसको याद करना, उसको अंडरस्टैंड करना ह्यूमन के लिए जो है वो डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू ये हम जो है वो सिम्बल्स को याद रख सके, ठीक है। हम इन सिम्बल्स को क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, ठीक है। जो अभी मैंने बताया कि हमने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कौन से इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, इसमें असेंबली लैंग्वेज में सब का कीवर्ड यूज करेंगे जो बता देगा कि इसने ये सब का कीवर्ड जो है ये क्या कर रहा है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। हम असेंबली लैंग्वेज को जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या जी। इट वाज डेवलप्ड इन 1950। ये कब डेवलप की गई थी, 1950 में जो है वो ये डेवलप हुई थी। वी यूज सिंबल्स और निमोनिक्स कोड, सो इट इज कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसमें क्या है जी, सिंबल्स और जिन्हें हम निमोनिक्स बोलते हैं इस जो है वो यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। अच्छा जी, अब क्या है, हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो किस फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड करता है, 0-1 के फॉर्म में। लेकिन हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो तो सिंबल्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। छोटे छोटे जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम निमोनिक्स बोलते हैं, उस पर मुश्तमिल होती है। तो फिर कंप्यूटर इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है इसमें असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसको डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसको इस जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, एक पर्सन उर्दू बोलता है, एक पर्सन जो है वो फारसी बोलता है। अब फारसी वाले बंदे ने उर्दू वाले बंदे से बात करनी है तो कैसे उसे समझ आएगी कि इसने ये बात की। हम एक ऐसा पर्सन सेंटर में ले लेते हैं जिसको दोनों लैंग्वेज आती हैं। वो क्या करता है, उर्दू को कन्वर्ट कर देता है उसमें फारसी में, और फारसी को उर्दू में कन्वर्ट करके उनको बात समझा देता है। इसी तरह क्या करते हैं हम, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम कॉल्ड assembler, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है ना उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। हमने इसको क्या करना है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में जो है वो कन्वर्ट करना है। मशीन कोड क्या हुआ, 0-1 के फॉर्म में, और इस असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारे निमोनिक्स मतलब छोटे छोटे सिंबल्स की वो जो है
वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। अब क्या है, एक ट्रांसलेटर है, हमने वो एक ट्रांसलेटर लिया, यहाँ पे हमारी असेंबली लैंग्वेज है ये ट्रांसलेटर, और यहाँ पर हमारी क्या है मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस असेंबली लैंग्वेज को लेगा, मतलब असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है ये ट्रांसलेटर उसको लेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में। इस ट्रांसलेटर को जो है वो हम क्या बोल रहे हैं कि ये ट्रांसलेटर क्या है, ये असेंबलर है, ठीक है, जिसे हम असेंबलर बोलते हैं। ये असेंबलर है जो ट्रांसलेटर है। इट इज ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम कार्ड असेंबलर, ठीक है। ये असेंबलर जो है ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटर है, जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज हमारी कौन सी लेवल लैंग्वेज होती है जी, द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मिडल लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन भी अंडरस्टैंड कर लेता है और ह्यूमन इंसान भी जो है, ह्यूमन बींग्स भी जो है, मतलब इंसान भी जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये क्या कहलाती है, हमारी मिडल लेवल लैंग्वेज। उसके बाद क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास सी लैंग्वेज जो है वो इसकी एग्जांपल है। सेकेंड ईयर में मोस्टली जो है वो सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो सी लैंग्वेज जो है इसकी एग्जांपल है मिडल लेवल लैंग्वेज की। उसके बाद क्या आती है जी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज देख लेते हैं क्या होती है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that are closer to human language are called high level language। ये वो लैंग्वेज है जो क्लोज होती है हमारे ह्यूमन लैंग्वेज से, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो हमारी क्लोज होती है, बहुत ज़्यादा करीब होती है ह्यूमन लैंग्वेज के, और ये बहुत ज़्यादा दूर होती है मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दूर होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज से, ठीक है। ये हम इंसान जो है इसको हाई लेवल लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस और वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है, और इसको जो है कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये क्लोज टू ह्यूमन होती है और फार फ्रॉम कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। अब क्या है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको लिखने के लिए उसके अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं कि इस लैंग्वेज को आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज लिखनी है। जैसे आप अगर कॉलेज में आते हैं तो आपके रूल्स हैं कि आपने सॉक्स ब्लैक पहननी है, जैकेट ब्लैक पहननी है। इसी तरह क्या है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए उसके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं कि अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, अगर हमने कोई 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके अपने सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए हैं कि इसको हमने ऐड 2 नंबर्स को ऐड कैसे करना है। वो सारे रूल्स जो हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग प्रोग्राम। These rules are called syntax। अच्छा, जो हमने रूल सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ये क्या है, सिंटैक्स है, ठीक है। जो हमें उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बता दिए गए हैं उनको हम सिंटैक्स बोलते हैं। अगर हम उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी लैंग्वेज पर अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो वो क्या होगा, मशीन पर इजीली एग्जीक्यूटेबल होगा। अगर सिंटैक्स में कोई एरर आ जाता है, हम उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो हमारा जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो कभी भी ठीक तरीके से रन नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास सी प्लस और सी प्लस प्लस है, ठीक है। सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि ये दो जो लैंग्वेज है सी एंड सी प्लस प्लस, ये किस लिए हमारे पास यूज होती हैं, ये हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है वो हम सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसी चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में हमने देखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी हाई लेवल लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है ह्यूमन के लिए, मतलब वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, सो इसलिए ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, और इस लैंग्वेज को सीखना, लर्न करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसे हम इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस गिवन यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। इसमें मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें जो हम वो लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो उसमें जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो इंग्लिश
کے ورڈس جو ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی یہ لینگویج لکھتے ہیں. دیکھیں جیسے سچ ایز ایڈ ہے, سبٹریکٹ ہے, ان پٹ ہے, پرنٹ ہے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو انگلش ٹائپ ورڈس ہیں یہ یوز ہوتے ہیں. ایڈ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے کہ کوئی بھی 2 نمبرز کو ایڈ کرنے کے لیے. سبٹریکشن جو ہے کسی بھی 2 نمبر کو سبٹریکٹ کرنا ہے تو ہم سبٹریکٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ان پٹ کیا ہے, اگر ہم نے یوزر سے ان پٹ لینی ہے تو ہم ان پٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں. پرنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہم نے اسکرین پر شو کروانی ہے تو ہم اس کے لیے پرنٹ کا فنکشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز جو ہیں ان سے مل کر جو ہے وہ ہماری لینگویج ہائی لیول لینگویج بنتی ہے. جو دیکھیں نا, اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایڈ کا کیا مطلب ہے, مطلب 2 نمبر کو ایڈ کرنا ہے. اگر یہی ایڈ کو ہم مشین لینگویج میں لکھے ہوتے, مثلا مطلب کوئی کوڈ لکھا ہوتا, تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کیا ہمارے لیے ایزی تھا؟ نہیں, کیونکہ ہم اس کوڈ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں اس طرح کے اتنے زیادہ کوڈز ہیں, ہم کن کن کوڈز کو یاد رکھیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن کے جو ہے وہ نیئر ہوتی ہے, کلوز ہوتی ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ فار دا مشین. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ مشین کے لیے ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ مشین تو نہیں سمجھتا نا یہ انگلش ٹائپ ورڈز کو, وہ نہیں سمجھتا, وہ تو بائنری فارم کو سمجھتا ہے. اس لیے یہ ڈیفیکلٹ کس کے لیے ہے؟ مشین کے لیے, جو ہے کمپیوٹر کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے. اس کے بعد کیا ہے, اٹ از ایزی فار پروگرامنگ. ٹھیک ہے, اس سے ہم جو ہے وہ اپنے پروگرامنگ جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اٹ از ایزی ٹو آپریٹ, اس کو آپریٹ کرنا, اس کو چلانا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہے. ٹائپس آف ہائی لیول لینگویجز, اب دیکھ لیتے ہیں کتنی ٹائپس کی جو ہے ہمارے پاس ہائی لیول لینگویجز ہیں. ہمارے پاس 3 ٹائپس آف ہائی لیول لینگویج ہے. پہلی ہے ہماری پروسیجرل لینگویج, دوسری ہے آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج, اور تیسری کیا ہے, ڈیٹا بیس کیوری لینگویج ہے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ ہائی لیول لینگویج کی ٹائپس ہیں. پروسیجرل لینگویج کیا ہوتی ہے؟ کمپیوٹر پروگرام فالوز پری ڈیٹرمائنڈ پروسیجر. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کمپیوٹر پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ کس کو فالو کرتے ہیں, کچھ سیٹ آف رولز, جو ہمارے پاس سیٹ آف انسٹرکشنز جو ہیں وہ پہلے سے پری ڈیٹرمائنڈ پروسیجرز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. مطلب جو پہلے سے ہی ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں, سیٹ آف انسٹرکشنز جو لکھ دیے گئے ہیں, کمپیوٹر پروگرامز جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. The computer instructions are executed by the order or in sequence in which they are written. اچھا جی, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کمپیوٹر جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں, کمپیوٹر کو جو ہم انسٹرکشنز کمپیوٹر کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ کس فارم میں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں؟ آرڈر ان بائی ایگزیکیوٹیڈ بائی آرڈر اور ان سیکوینس. مطلب سیکوینس میں پہلی جو انسٹرکشن لکھی ہے پہلے کمپیوٹر اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا, پھر دوسری جو انسٹرکشن لکھی ہے کمپیوٹر اس کو ریڈ کرے گا, اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا, پھر تھرڈ والی. مطلب اس طرح سیکوینس سے جو ہے وہ ہماری انسٹرکشنز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جس فارم میں بھی ہم ان کو رائٹ کرتے ہیں اس سیکوینس سے. ٹھیک ہے, 1 by 1 ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری انسٹرکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. These instructions tell the computer what to do and how to do. اچھا جو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں نا, یہ بتاتی ہیں کہ کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ کمپیوٹر کو بتاتی ہیں. کمپیوٹر تو ایک ڈم مشین ہے جو خود سے تو کچھ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, اس کو ہر چیز ہمیں بتانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ بتاتی ہیں what to do, کیا کرنا ہے, how to do, اور کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ انسٹرکشنز بتاتی ہیں. These languages are called third generation language. ہم اس لینگویج کو تھرڈ جنریشن لینگویج بھی بولتے ہیں. The most procedural languages are, جو ہمارے پاس موسٹ procedural languages یوز ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں جی؟ Fortran ہے, it stands for formula translation. ٹھیک ہے, اور کیا ہے ہمارے پاس ایک بیسک ہے, یہ کیا جی؟ اسٹینڈ فار بگنر آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ ہے. اس کے بعد یہ 2 ہماری ٹائپس تھیں. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج. آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج ہمارے پاس کون سی ہوتی ہے جی؟ آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج از اے ہائی لیول کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے. یہ جو ہماری آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے یہ ہماری ہائی لیول کی جو ہے وہ ایگزامپل ہے. ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں that implements objects and their associated procedures within the programming context to create a software programs. اچھا جی, سافٹ ویئر پروگرامس کو بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم اورینٹڈ لینگویج یوز کرتے ہیں, اور یہ کون سی لینگویج ہوتی ہے؟ ہماری ہائی لیول کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہیں یہ, اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. ان میں جو ہے وہ ہم آبجیکٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں. آبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی تھنگ ہو سکتی ہے, کوئی چیز ہو سکتی ہے, کوئی پرسن, کوئی بھی اینٹیٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. مطلب
इंसान हो सकता है ऑब्जेक्ट, अगर कार है, टेबल है, मतलब इस तरह कोई भी चीज़ जो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है कोई भी प्रोसीजर, कोई फंक्शंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म होंगे, ये सारा कुछ जो है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बताते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो कौन सी टेक्निक को यूज करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को जो है वो यूज करती है। दैट बाइंड्स रिलेटेड डाटा एंड फंक्शंस इनटू एन ऑब्जेक्ट एंड encourages रीयूज ऑफ these objects within the same and other programs। अच्छा जी, हमारे पास ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो easy to use होती है कि हम एक दफ़ा जो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में लिखा गया है उसे हम रीयूज़, दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब पर्सन का, हम पर्सन ले लेते हैं, एक इंसान जो है वो हमारे पास एक पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब उस पर्सन से रिलेटेड कि उसका डाटा क्या है और उसने कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो फंक्शंस मतलब कौन कौन से काम परफॉर्म करने हैं, ये सारे जो हैं हम इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है उसका डाटा और उसके फंक्शन सारे जो है वो हम बताते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कार है, अगर हम फॉर एग्जांपल कार लेते हैं और कार एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी फंक्शनैलिटी बताते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से काम परफॉर्म करती है, उसमें कौन कौन सा डाटा आता है। ठीक है, और इन जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, हम इन जो हमारे पास है ये फंक्शंस, डाटास जो हैं इनको हम जो है वो अदर प्रोग्राम, मतलब किसी दूसरे प्रोग्राम में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं और विद इन द प्रोग्राम भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी? हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एग्जांपल्स हैं, हमारे पास जावा, C++, ये भी जो है ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। एंड पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये बहुत मोस्ट पॉपुलर जो है वो लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद क्या है जी? डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज। डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? DBMS जो होता है वो हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द क्यूरी लैंग्वेज। अब हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है क्यूरी लैंग्वेज को। क्यूरी लैंग्वेज देख लेते हैं होती क्या है? टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। अच्छा जी, क्यूरी लैंग्वेज होती है कि हमने एक डेटाबेस बनाई हुई है। डेटाबेस मतलब हमने जो है कुछ रिकॉर्ड जो है, फॉर एग्जांपल अब हमने कॉलेज है तो उसका रिकॉर्ड जो है वो सारा, कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से आते हैं, मतलब इन सब का रिकॉर्ड जो है वो हमने सेव किया होता है। कहाँ सेव किया होता है? डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डेटाबेस जो है वो हमारी टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह होती है, उसमें हमने सारे स्टूडेंट्स का डाटा, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव की होती है। द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज इज SQL। जो इसमें डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज में यूज की जाती है, मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी SQL है, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। द स्टेटमेंट्स ऑफ SQL आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास ये SQL होती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो होती है, ये सिंपली जो है इंग्लिश लाइक वर्ड्स में इसके सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। अगर हमने इस क्यूरी को रन करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, मतलब लिखना हो तो राइट करना हो, तो ये जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स से की तरह की लिखी जाती है। ठीक है, जैसे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स ऑफ SQL आर सेलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट, इंसर्ट। ये देखिए, ये इंग्लिश टाइप वर्ड्स जो है वो यूज करते होते हैं। हमारे पास एक डेटाबेस बनी हुई है जिसमें डिफरेंट टेबल्स जो है वो जनरेट किया हुआ है। एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट का जो है वो टेबल वो जनरेट किया हुआ है। उसमें क्या है? हमने हर तरह, मतलब सभी स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो उसमें एंटर करवाया हुआ है। अब क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि किसी एक, हमने सारे के सारे स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो देखना है, कौन सा स्टूडेंट कहाँ से आता है, तो हम क्या करते हैं? टेबल पे सिलेक्ट की क्यूरी लगा देते हैं। सिलेक्ट कर दो ऑल डाटा को। ठीक है, डिलीट, अगर हमने किसी पर्सन का रिकॉर्ड डिलीट करना है वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट, किसी पर्सन का रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है, मतलब कोई एंटर करना है, कोई न्यू स्टूडेंट एंटर करना है तो वो भी करवा सकते हैं। मॉडिफाई, कोई चेंज अपडेट करनी है तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? फॉर फॉलोइंग पर्पस क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। ये किस लिए यूज की जाती है? क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर के लिए जो है वो यूज की जाती है।